Have a look, students. We were doing today. We will start with a fresh chapter, and this chapter is related to the revolt of 1857. 1857 की क्रांति से संबंधित है ये पाठ. And this is the fifth lesson of history. It is part of our syllabus. As far as the syllabus of half yearly is concerned, we have covered 3 lessons of geography, 5 lessons of civics, and 4 lessons of history. अभी तक हम लोग 12 chapters cover कर चुके हैं, but हमारे syllabus में अभी 2 chapters और हैं, and these 2 chapters are lesson 5 of history and lesson 6 of history. These are part of the half yearly syllabus. So we will have to cover this. Now let us start with this chapter, when people rebel. But before starting with the chapter, let us try to understand the background behind the revolt of 1857. 1857 की ये जो क्रांति हुई थी, इसके पीछे कारण क्या थे? ठीक है, अगर आप अपने लेसन 1 से लेके लेसन 4 को रिकलेक्ट करते हैं, उसको दोबारा से जो है मेमोराइज करते हैं, तो आप देखते हैं कि अंग्रेज जो है हमारे देश में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी, it basically it entered as a trading company. Now who was this? Who was this? द बेस्ट ऑप्शन ना, अब 2 चैप्टर्स जो बचे हैं, अब मैं इसमें किसी को कुछ जो है बोलने ही नहीं दूंगी. अब आप लोग चुपचाप जो है मूक बहिर की तरह बस सुनते रहिए. Have a look, children. See, if you have your book with you, page number 51. Page number 51, take out your book. You can see figure 1 is there. And in figure 1, what you can see? You can see the sepoys. The sepoys and the peasants gather forces. Sepoys and peasants gather forces for the revolt that spread across the plains of North India in 1857. तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? इसमें आप sepoys देख रहे हैं. Who are the sepoys? Sepoy is the anglicized version. It is the anglicized version of the word सिपाही. ठीक है ना? तो सिपाही को ही जो है ठीक है ना, सिपॉय कहा जाता था. एंड व्हाट वी सी कि यहाँ पे जो सिपाही लोग हैं और जो किसान लोग हैं, ठीक है ना, वो अपने दल को जो है एकत्रित कर रहे हैं. किस लिए? क्रांति के लिए. ठीक है ना, विद्रोह के लिए जो है वो अपने दल को जो है उत्तर भारत के जो समतल क्षेत्र हैं वहां पे जो है वो अपने दल को जो है एकत्रित कर रहे हैं. देखिए, policies and the people. In the previous chapters, you looked at the policies of the East India Company and the effect they had on the different people. Kings, queens, peasants, landlords, tribals, soldiers were all affected in different ways. You have also seen how people resist policies and actions that harm their interest or go against their sentiments. In the previous chapters, we saw how the cultivators, they were forced to grow indigo. We also saw how the rulers, they lost their kingdom through the different doctrines, like the doctrine of lapse, the subsidiary alliance, then the doctrine of paramountcy, misgovernment on the grounds of misgovernment, misrule. We saw the princely kingdoms, they were losing their power, they were losing their kingdoms one after the other. We also saw the peasants being affected. They were forced to grow crops which they were not interested in. And the crops that they grew made their lands barren, that is unfit for cultivation. And we also saw the artisans, the craftsmen losing their job because all the raw materials, especially cotton, is being what? It is being exported to Britain after the industrial revolution taking place in Britain. And we see that each and every section of the society is being affected, due to the arrival of the East India Company. This the officials of the East India Company, they wanted privileges, and in order to get these privileges, they pressurized the rulers, the nawabs, to give them trade concessions and many other things we saw when we went through the previous chapters, that is chapter 1 to
4. Okay, now let us try to understand that all these reasons, okay, one after the other, these reasons, they culminated in a kind of a revolt against these, okay, outsiders. As we saw in our previous chapter, these outsiders, they were considered by the tribals as Dikus. Okay, so we see that these outsiders, they had come with the motive of trade in the country, but when they saw that there is there is, okay, political instability in the country, they took advantage of this situation and they became the final administrators of the company. The two battles, okay, the battle of Plassey 1857 and the battle of Buxar, the battle of Plassey 1757 and the battle of Buxar 1764, okay, they were turning points as far as Indian history was concerned, and these traders, they finally became the masters of Bengal. Now see, when we go through the pages, page number 51, see, Nawab lose their power. Since the mid 18th century, Nawabs and Rajas had seen their power erode. They had gradually lost their authority and honor. Residents have been stationed in many courts, the freedom of the rulers reduced, their armed forces disbanded, and their revenues and territories taken away by stages. Many ruling families tried to negotiate with the company to protect their interest. For example, Rani Lakshmibai of Jhansi wanted the company to recognize her adopted son as the heir to the kingdom after the death of her husband. Nana Sahib, the adopted son of Peshwa Baji Rao II, see, pleaded that he be given his father's pension when the latter died. However, the company, confident of its superiority and military powers, turned down these pleas. Okay, we also saw that Awadh was one of the last territories to be annexed. Okay, now let me ask you, अवध को किस ग्राउंड पे जो है, okay, ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था, on which grounds? Why was Awadh annexed? Anybody? Child, no. Huh? Why was Awadh annexed? Ma'am, on the order of Lord Dalhousie. हाँ, लॉर्ड डलहौजी के ऑर्डर से एनेक्स हुआ था. हाँ, is it so? What was the ground? Under the doctrine of misgovernment. No, it is misgovernment. Misgovernment. Yes, It is ma'am. misgovernment, not doctrine of Misgovernment. lapse. Okay, so we see that हमें ये पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी, see, बेटा जब पढ़ते हैं ना तो सीरियस होके पढ़ते हैं, बीच में डिस्ट्रैक्ट नहीं करते हैं, म्यूजिक बजा के तो भोजपुरी में बात करके. हाँ, ऑल दिस इज नॉट डन. द ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, केम टू इंडिया as what? They came to India in which year? 1600. As traders. Okay, ठीक है ना. ये वहाँ की महारानी से जो है चार्टर साइन करवाते हैं और चार्टर साइन करवा के हमारे देश में व्यापार के उद्देश्य से जो है ये आते हैं. ओके, विथ पैसेज ऑफ टाइम व्हाट वी सी, विथ पैसेज ऑफ टाइम, ओके, दे बिकेम द एडमिनिस्ट्रेटर्स. They became the administrator. Okay. और 1764 के बाद हम क्या देख रहे हैं? 1764 के बाद 1764 में क्या हुआ था? 1764 में क्या होता है? What happened? हाँ? Battle of the Buxar. Battle of Buxar. Between whom? हाँ? Mir Qasim और Only East India Mir Qasim was Company. there. East Huh? India. After the battle of Buxar, Mir Jafar. no, it is wrong. The British, Sirajudollah. हाँ?
सारा एक साथ मिक्स कर लो आप लोग, ठीक है ना, सब कुछ एक साथ मिक्स कर लो। हिस्ट्री जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है अगर इसको आप कहानी के रूप में पढ़े तो, हाँ, लेकिन अगर आप इसको मिस्ट्री बना देंगे तो वास्तव में मिस्ट्री हो जाएगा। 1757 में सिराजुद्दौला के साथ युद्ध हुआ था ना, 1757 में जो है सिराजुद्दौला का युद्ध हुआ था ना, हाँ। In 1757, Sirajuddaulah fought the war with the British, and the British armed forces, they were represented by whom? Robert Clive, ठीक है ना, हाँ, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में जो है युद्ध हुआ था, जिसमें सिराजुद्दौला हार जाते हैं ड्यू टू द ट्रेचरी ऑफ मीर जाफर, one of his commander in chief. Yes, ma'am. Okay, and what we see that after मीर जाफर, ठीक है ना, मीर जाफर जब जो है अंग्रेजों की शर्तों के हिसाब से चलने से इनकार कर देते हैं, तो उनको डिपोज करके जो है उनके जगह पे मीर कासिम को पपेट रूलर बनाया जाता है बंगाल का। ओके, बट देन व्हाट वी सी, मीर कासिम जो है वो स्मार्ट रूलर थे, ठीक है ना, ही वाज अ स्मार्ट नवाब, ही वाज अवेयर ऑफ द मोटिव्स ऑफ द ब्रिटिश। और आपको मैंने बताया था व्हेन आई वाज टीचिंग द चैप्टर, आई हैव टोल्ड यू ही टुक मेनी he introduced many changes in his administration. उन्होंने बहुत सारे changes लाए थे अपने administration में जो अंग्रेजों को पसंद नहीं थे, ठीक है ना, it was not acceptable by the British. Okay, and छोटे मोटे जो है मतभेद होते रह रहे थे, छोटे छोटे जो है गृह युद्ध हो रहे थे, बट बड़े पैमाने पे जो है युद्ध कब हुआ, बड़े पैमाने पे युद्ध उस वक्त हुआ, ठीक है ना, जब 1764 में जब मीर कासिम जाके जो है सुजाउद्दौला, ठीक है ना, अवध के जो नवाब थे उनके साथ हाथ मिला लेते हैं, और जो मुगल बादशाह हैं, ठीक है ना, शाह आलम सेकंड, उनके साथ वो हाथ मिला लेते हैं इस उद्देश्य से कि इन दोनों की सहायता से वो अंग्रेजों को हराएंगे। ओके, बट हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं कि द ब्रिटिश फोर्सेस दे वर, ओके, हु डिफीटेड मीर कासिम, मीर कासिम को किसने हराया था बैटल ऑफ बक्सर में? Was it Warren Hastings? Was it Warren Hastings? Robert Clive. Robert Clive again? Sure? आप लोग श्योर हो कि रॉबर्ट क्लाइव नहीं हराया था? I don't think so. हाँ? Lord Hastings. Who defeated him? Everything you people forget. This is the problem with you people. Warren Hastings. हाँ? Warren Hastings. चलो Jaffar. याद करते रहो, ठीक है ना। ओके, देखो और पेनल्टी के रूप में आप देखेंगे कि जैसे ये बक्सर का युद्ध खत्म होता है, आप देखते हैं कि इलाहाबाद की संधि साइन की जाती है। द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद वाज साइंड। ओके, दिस ट्रीटी वाज साइंड। मीर कासिम तो भाग जाते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो संधि है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद किसके बीच साइन होती है? अंग्रेजों के बीच साइन होती है, शाह आलम के बीच साइन होती है, और जो है सुजाउद्दौला के बीच साइन होती है। और इसी संधि के तहत हम देखते हैं कि शाह आलम सेकंड, ठीक है ना, अंग्रेजों को 3 अलग अलग क्षेत्रों की जो है दीवानी का अधिकार देते हैं। विच वर द प्लेसेस? द ब्रिटिश दे गॉट द दीवानी ऑफ विच प्लेसेस? विच टेरिटरीज? ओडिशा, Bengal. ओडिशा, Bengal. Bengal, Odisha. Bengal. बनारस। हाँ हाँ, और कुछ बोलो, और कुछ बोलो आप लोग। हाँ, ब्रिटिश गॉट द दीवानी ऑफ, ओके, 3 important territories, दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड ओडिशा, ठीक है ना। ऑल दीज 3 आर एडजॉइनिंग। अगर आप मैप को देखेंगे तो ऑल दीज 3 प्लेसेस आर एडजॉइनिंग एरियाज, ठीक है ना। ब्रिटिश को जो है दीवानी का अधिकार मिलता है बंगाल का, बिहार का, उड़ीसा का, और दीवानी के अधिकार मिलने से उनकी आधी समस्याएं सॉल्व हो जाती हैं। अब पहले जो है आपने देखा होगा कि जो बंगाल नवाब से उनको कॉइन मिंट नहीं करने दे रहे थे, और इनको ट्रेड करने के लिए क्या करना हो रहा था? ब्रिटेन से जो है सोने और चांदी मंगाने पड़ते थे,
और यहाँ की करेंसी में जो है उसको कन्वर्ट करके फिर ट्रेड करते थे। बट दीवानी का अधिकार मिलते ही इनको लगान वसूलने का अधिकार मिल गया। दीवानी मतलब द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। ओके, दे गॉट द राइट Yes, टू ma'am. कलेक्ट रेवेन्यू एंड व्हाट हैपेंड व्हेन दे गॉट द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू। अब यहाँ का अगर आप लगान वसूल रहे हैं तो यहाँ की करेंसी में ही मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ की मुद्रा में ही मिलेगा। अब उनका जो प्रॉब्लम था, ओके, इंपोर्ट करने का, इंपोर्ट करते थे वो गोल्ड और सिल्वर, अब वो आधी समस्या दूर हो गई। ओके, इट्स लाइक अ स्टोरी, इफ यू रिमेम्बर ना, इट इज वेरी इजी एंड इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। लेकिन अगर आप इसको जो है एकदम प्रेशर में पढ़ेंगे तो कुछ नहीं याद रहेगा। देयर वर डिफरेंट डॉक्ट्रिन्स अंडर विच पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश द रेसिडेंट्स वेर ओके एम्प्लॉयड। रेसिडेंट्स जो हैं वो जो शासक होते थे उनके दरबार में प्लांट किए जाते थे। अंडर विच पॉलिसी? बताओ। What, ma'am? कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ठीक है ना, वो अपने रेसिडेंट्स को, ठीक है ना, Yes. रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, उनके प्रतिनिधि होते थे, ठीक है ना, इनको जो है जो स्थानीय नेता स्थानीय जो शासक होते थे उनके दरबार में प्लांट करती थी। किस नीति के तहत? त्रिपाठी, कैन यू हियर मी? त्रिपाठी, Yes, ma'am. क्या होगा बेटा आंसर? द कंपनी स्टेशन देयर रेसिडेंट्स इन द कोर्ट ऑफ रूलर्स अंडर very bad. You people forget everything so soon. It is subsidiary alliance. Under the terms of the subsidiary alliance, ठीक है ना, सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है जो शासक होते थे, ठीक है ना, जो नेटिव रूलर्स थे, उनसे क्या कहा जाता था? उनसे कहा जाता था कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, आपको जो पड़ोसी जो किंगडम है, ठीक है ना, पड़ोसी जो राजा हैं, उनसे आपकी हम सुरक्षा करेंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा? हमारे एक प्रतिनिधि को अपने दरबार में आपको रखना होगा, और साथ ही साथ आपको अपनी सेना में जो है हमारी एक सेना का जो है ओके अंग रखना होगा, ठीक है ना। अब पार्ट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी विल बी स्टेशनड इन द आर्मी। ओके, एक टुकड़ी रहेगी हमारी भी, और ये जो हम जो अपने सोल्जर्स देंगे आपके प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है ना, उनकी मेंटेनेंस का खर्च आपको उठाना होगा। सो इट वाज अ वेरी डिप्लोमेटिक वे, ठीक है ना। डिप्लोमेटिक तरीके से जो है कंपनी जो है वो क्या करती थी, एक तो जो राजा है, ठीक है ना, जो नवाब है, जो राजा है, उसकी गतिविधियों पे भी वो नजर रख रही थी थ्रू द रेसिडेंट्स, ठीक है ना। कंपनी के खिलाफ वो को ना तो कोई चर्चा कर पाते थे अपने दरबार में, ना कोई वो फैसले ले पाते थे। जो कोई भी प्रशासनिक कार्य वो करते थे, ओके, ये रेसिडेंट्स जो है उसमें इंटरफेयर करते थे, और अगर उनके खिलाफ अगर कोई फैसला लेते थे कंपनी के खिलाफ, तो ये जाके जो है कंपनी को बता देते थे, ठीक है ना। एंड व्हाट यू विल सी, अगर आपने मणिकर्णिका देखा होगा, मणिकर्णिका, इट इज अ बायोपिक, ओके, दैट हैज बीन मेड ऑन द लाइफ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई। ओके, तो उसमें आपने देखा होगा कि पेशवा बाजीराव के दरबार में कैसे अंग्रेज रहते हैं, ठीक है ना, उनके दरबार में रहते हैं, और उनको जो है फ्रीली जो है कोई भी डिसीजन लेने नहीं देते हैं, ठीक है ना। तो इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत जो है जो रूलर्स होते थे उनको सबसे पहले एक रेसिडेंट रखना पड़ता था अपने दरबार में। सेकंड, ओके, एक ब्रिटिश ट्रूप मेंटेन करना पड़ता था अपनी आर्मी में, और उस ट्रूप का जो है टोटल खर्चा उठाना पड़ता था। एंड इफ दे फेल्ड, किसी कारणवश अगर जो ब्रिटिश ट्रूप अपने आर्मी में रखे हैं, ठीक है ना, उसका मेंटेनेंस वो नहीं दे पाते थे, तो उनके जो किंगडम था, ठीक है ना, उनका जो राज्य था, उसका कुछ एक जो हिस्सा होता था, अ पार्ट ऑफ द टेरिटरी, वो ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था, ठीक है ना। ओके, तो सी दे वर सो डिप्लोमेटिक, बाय फोर्स दे आर प्लांटिंग अ रेसिडेंट इन द कोर्ट, by force they are pressurizing you to maintain a troop in the army, and they are asking you to give the maintenance cost also, and if you fail, a part of the territory is being what, annexed to the British Empire.
ओके तो इस सब्सिडियरी अलायंस के तहत okay under subsidiary alliance and the other doctrines were see the other doctrines like what were the other doctrines like doctrine of lapse okay किसने स्टार्ट किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स हाँ who started this doctrine of Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. Lord Dalhousie. okay Lord Dalhousie. I'm Lord Dalhousie. then doctrine of paramountcy who started this doctrine of paramountcy हाँ Lord Hastings. Mountbatten. माउंटबेटन कहाँ से आ गए बेटा Lord Hastings. हाँ Warren Hastings. इट इज वेरन हास्टिंग्स वेरन हास्टिंग्स जो है 2 बार गवर्नर जनरल बने थे ठीक है ना ओके सी वेरन हास्टिंग्स एंड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट ठीक है ना ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट ठीक है ना आपको शासन करने नहीं आता है इसीलिए हम आपके राज्य को जो है ब्रिटिश राज्य में मिला रहे हैं ये बताइए कितना सही काम ये लोग कर रहे थे ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिस गवर्नमेंट ओके मेनी प्रिंसली किंगडम्स मेनी प्रिंसली स्टेट्स वी कैन से वेर एनेक्स टू द ब्रिटिश एम्पायर ठीक है ना तो एक एक करके जो है अंग्रेज अपनी नीति बनाते गए ओके और हमारे जो राज्य थे उनको जो है ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाते गए ठीक है ना हैव अ लुक इज इट विजिबल दिखाई दे रहा है Yes, ma'am. मैम उधर का नहीं दिखाई दे रहा है मैम नीचे का नहीं। नहीं दिखाई दे रहा है मैम मैम उधर का नहीं दिखाई दे रहा नीचे का मैम पूरा एक इधर कर सेकंड, दीजिए एक सेकेंड मैम अब ऊपर का फोटो दिखाने लगा है आई एम ट्राइंग ऊपर के पेंटिंग दिखाने लगा वेट 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 आई विल डू इट